agriculture seed and pesticide and fertilizer ହେଇଥିଲା okay तो ये टॉपिक डिस्कस कर देथिले सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ये सब देखि द डिस्ट्रेस साइकिल इन द एग्रीकल्चर ये सब okay so starting the discussion from significance of the agriculture sector. Significance of the agriculture sector. There are different significances that you should discuss about while we are going through the concept of agriculture. So let's first discuss the social significance of agriculture sector. First and the most important issue which is associated with the social significance is poverty. We have discussed different aspects, different facets, and different types of poverty. May it be absolute or may it be relative poverty. So, distress in the agricultural sector or decline in the agriculture sector, that will directly lead to poverty, because maximum population of India, they depend upon agriculture, or simply we can say that Indian form of economy is agrarian economy. So that is why increase in the agricultural production will increase the output, or it will directly have positive impact upon the gross domestic product of the country. And in the same way, decline in the agriculture sector, it will lead to reducing the GDP of the country. The most important point, or the social significance of agriculture. The next most important social significance of agriculture sector is health and nutrition. Health and nutrition. So how health and nutrition are related to agriculture? Agriculture quantity, it will directly ensure food availability or food security in the country. In the same way, quality of the agricultural produces, that will ensure good health and nutrition of the population. So quality of the agricultural produces is a must for a developing country like India, where accessibility is nowadays it is somehow manageable, and maximum parts of India or maximum population of India, they can access and they can afford the price of the food in today's time period. And if some section are not able to not competent enough to afford that price, the government is providing a very nominal rate of 2 rupees per kg rice, 2 rupees per kg, and some other type of meals like for the urban posts, as we have discussed, like Ahar scheme by the government of Odisha. In the same way, in other states, you will be finding many welfare schemes which have been formulated by the state governments, especially in the southern states. These schemes are quite popular. कर्नाटक कर्नाटक तमिलनाडु ये सब शुणिथिबो सेपटे कोन जयललिता नारे बहुत गुडे स्कीम थिला वेलफेयर स्कीम जदि जानिथिबो पूर्व से सब स्कीम एबे भी कंटिन्यू होछ. The next most social significance of agricultural sector is migration. So how migration is related to this? Migration केमती आ सहित related, because in migration we discussed two factors, push factor and pull factor, and basically the rural region, it acts as the push factor in migration, and urban regions, they attract, or they are the pull factor in case of migration. Why people from rural are migrating to the urban region? Just because they are not getting the job, and basically to get employment, they are more attracted towards the urban centers and urban regions of the of India. So for that purpose, development in the agricultural sector, more the production, more will be the income of the farmers, so that they will never be interested to migrate to the urban region. So agriculture curriculum, even if in today's time period, you will be finding many youths in Odisha, they are earning more than 1 lakh rupees per month. And apart from that, they have also given employment facilities to 8 to 10 members from their village or from their local community. So can you imagine the agro entrepreneur, the persons, those who are working as bonded laborers in the rice mill or any other type of textile mills in Surat or in other parts of India, they quit the job and they started being an entrepreneur in the field of agriculture. Nowadays, they are successful entrepreneurs in Odisha. You can check out their history.
from YouTube videos so that you'll have a general knowledge regarding how agro entrepreneurship is being popularized in some rural states or agrarian states like Odisha. The same thing in the same spirit and with the same nature, the entire phenomena of development of agriculture that should be spreaded throughout India. So definitely development in the agriculture will reduce migration, especially rural to urban migration for the mean of livelihoods. The next is suicide. Suicide in this context, I directly mean to the farmer suicide. So low production in the agricultural sector, it induces or it instigates farmer suicide. More the production, more will be their income, so that indebtedness will be less, and they can easily repay their loans that they have taken from the unorganized sector, and it will reduce farmer suicide. So these are the social relevance of agricultural sector. The next we will discuss economic impact of agricultural sector. The most important economic impact is employment, because maximum people of India, they are being employed in the agricultural sector only. And the second most significance is less contribution to the GDP. So see, you can check out the difference or the anomaly in this case. Maximum population, they are being engaged in agriculture sector, whereas less contribution to the GDP. What does that mean? That means the quality of the agricultural sector or the productivity, that is very low. So the reason may be related to climatological factors, may be related to human factors, or that may be related to less skill or less technological factors or less utilization of the technologies in the agricultural field. That is separate matter. But the thing is that the contribution from the agriculture sector to the GDP is very less over to other sectors. The next most economic impact is it creates wage, it creates employment, and basically for the non-agriculture sector. जो मैंने agriculture involved नाहंती non-agriculture सेमानकु भी ये employment होच केमती मानि नियो धान चाष हला परे धानटा कुटा फଳରେ कुटा जीवो राइस मिल हला तो ये सब नॉन एग्रीकल्चर लेवल रे एक्टिविटी बा अलगा लेबर हले जो माने काम करिवे खाली हार्वेस्टिंग कला बेले से माने एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होंतनी बट एज लेबर सेमानकु किछि इनकम मिले या व्यतीत जदि आम गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखिबा फॉर द वेलफेयर स्टेट to make India a welfare state, government has been trying many type of initiatives like Make in India, Startup India, and basically agriculture को गोटे private enterprise हिसाब रे project करिया चाहूँगी government of India बा गोटे concept अच्छी सुनी जो rural urbanization, rural plus urbanization, rural region में urbanization process को develop करिया ताको कहा जाए rural urbanization ये सेक्टर को डेवलप करिया को चाहूची या सहित संसद आदर्श ग्राम ये टाइप रो विभिन्न प्रकार रो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव अछि जोथरे एग्रीकल्चर बा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमें कहि परिया डायरेक्टली जे होची हमर एग्रीकल्चर रो सब सिग्निफिकेंस नेक्स्ट ये एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल it provides raw material to other sectors like mu कहली food processing sector तो raw material agriculture sector रो ही आसे ହେଲା ये सब होची economic significance and apart from economic significance you have technological significance significance पहले basically ये demand create करे technology पाई को type रो माने food processing sector हैला so these sectors require technology they require machines they require different type of technological instruments it will promote three type of technologies the first is mechanical technology second is communication information technology third is the chemical or biotechnology. Biotechnology in terms of production of the HIVs, genetically modified crops, high yield variety seeds. So, emanakar development by a technology sector, biotechnology sector develop hobo. And in the same way, chemical sector, technology sector, pesticides, insecticides, fertilizer pine develop hobo. Food processing sector जो machine दरकार माने ना chips production होची, cold drink production होची, यहाँ पे जो machine दरकार से packaging machine ये सब develop होबो. Irrigation facilities पाई पंप जेमति दरकार होची बा पावर टिलर ट्रैक्टर हार्वेस्टर कल्टीवेटर ये सब पाई मैकेनिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर डेवलपमेंट आल्सो इट डजंट मीन कि एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट दैट इज लिमिटेड ओनली टू एग्रीकल्चर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम दैट it has also impact upon the secondary sector it has also impact upon the heavy industries small scale industries and agro based industries as well so these are the technological as well as economic significance of agriculture sector. The next and the most important significance of the agriculture sector is
your international significance. International significance, basically this is the strategic significance or it is the international level political significance. ଯେମିତି କି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ discuss କରୁଥିଲେ while discussing 5-year plans, ଆମେ discuss କରୁଥିଲେ କ'ଣ? At that point of time, India has a negative image throughout the world. That is the begging bowl image. India was known as or considered as the begging bowl for the entire world. The reason was India was a very food scarce country. So food ଯେତିକି ଦରକାର as per the requirement ଆମକୁ ସେତିକି food ମିଳୁନଥିଲା. So that was the problem. Food ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆମେ ବାହାର country ମାନଙ୍କଠୁ other country ମାନଙ୍କଠୁ import କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ food. So international market ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ WTO କୁହ ଆମର World Trade Organization କୁହ ବା FAO କୁହ ये सब international level ରେ जो organization ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ helpful ହୁଅନ୍ତି international level ରେ ଗୋଟେ stand maintain କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ country ର. So India stand भी हमें maintain करी परिवा in the global forum. The next is environmental significance. Environmental significance we can discuss about groundwater depletion, salinization of the soil, soil degradation, contamination of the soil, water scarcity, water stress, eutrophication, climate change. ये सब जिनसे environmental significance agriculture sector रो. And basically this significance are environment related ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି more or less they are related to environmental degradation. So these are different significance of agriculture sector. The next, the distress cycle in the agriculture. Distress cycle in agriculture. ये ଗୋଟେ simple concept ତାକୁ ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ. माने एउटा हम स्टार्ट करवा लो इन्वेस्टमेंट in the agriculture sector. So investment low हेले automatically यार impact production ऊपर पड़ेगा and production will be low. Production यदि low हुए then there will be agrarian crisis. Agrarian crisis means there will be low farmers income. Farmer income low हेले definitely आप अगर saving करिया पाएं plus spending करिया पाएं farmer पाकर income कम रहेगा and there will be inability of the farmer to pay the debt. ये debt payment करी परियो नहीं. And when the farmer will be overburdened with debt, the farmer will be interested for farmer suicide करियो. And farmer suicide हेले there will be demand for the loan waiver करिया पाएं farmer community माने strike करियो. And loan waiver जेतु public पाखु एते demand आसीबो, in this case government will be forced to do a loan waiver because there will be pressure from the opposition, there will be pressure from the NGOs, activists, human rights activists, farmer community. So ये सब activists माने ये सब pressure बढ़िया द्वारा farmer ऊपर by different civil societies and other organizations. The state or the government it will provide subsidy or it will provide loan waiver. When loan waiver will be more, automatically that will lead to fiscal deficit. Fiscal deficit of the state. केमती ना जति क्या revenue आसीबा government रो revenue versus expenditure जदि देखिबा expenditure will be quite more as compared to revenue. That is why it will create fiscal deficit. And when fiscal deficit will be there, automatically investment of the government. In this case, investment means the investment by the government. It will be very less. Investment by the government will be less, and when investment will be less, then automatically it will lead to not only agrarian crisis but also crisis of other sectors as well. Distress cycle. Distress cycle जाने वाला ना का problem है. Okay. The next topic, let's come back to the topic that we were discussing last time. That was use of technology. One input sector रे कौन problem अच्छी है सो हम discuss करते हैं. And I think I have discussed up to pesticide and fertilizers. The next thing that I need to discuss is the most important input parameter for the agriculture is your irrigation facilities.
irrigation facilities এটা discuss করিবি তো irrigation টা করি নতি so irrigation and productivity in the agricultural sector, they are directly involved or they are directly interlinked. So in this regard, what we should know is that how much of irrigation is required, exactly at what time, and how the crops they are watered. It will determine the or it will have effect upon the eventual yield of the production. So যদি ଆମେ cost ହିସାବରେ ଦେଖିବା then total input cost ର 70% farmer କୁ irrigation ପାଇଁ responsibility ନବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ. So ବର୍ତ୍ତମାନ in today's time period what are the problems with the Indian agriculture with respect to irrigation ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ କଣ problem ଅଛି. The first and the most important thing is point in this regard is the nowadays India is moving from water stressed country to water scarce nation. पूर्वर water stress थिला एठी per capita availability of water what it is declining in today's time period gradually ये decline ही जाउ चलछि and we expect that by 2050 India is going to be a water scarce zone. So in nowadays also you'll be finding many water scarce zone in India, but the spread and the extension of those zone is quite limited. But just after 30-40 years, the spread of this scarce zone will be more. And बहुत जगह रे पाइबो इस वाटर स्कार्स जोन जहार इम्पैक्ट केवल एग्रीकल्चर नुहे rather than industry plus human life plus both flora and fauna upare पड़िबा जाउछि. The next is in today's time period there is a very increased demand for water. The increased demand for water is what for? Because nowadays our consumption pattern has been completely changed. In earlier times we are focusing more upon cereals and pulses, but in today's time period we are finding that due to increase in the income, people are consuming more in terms of fruits, vegetables, milk, poultry, fish, meat. So these product upar mu discuss kali they require more water, or I can say that they are highly water intensive in comparison to the cereals. So for that purpose water requirement bhi bartan dhire dhire badi chalichi and automatically per capita requirement of water is more in India. The next, if I'll be talking about the spread or equity distribution of irrigation, this is really a dream in India. There are different factors which facilitates this particular concept. The equity distribution of irrigation kon pai nahi throughout India. The first is the geographical factor. Geography anusar jodi ame dekhiba there are many harsh geographical regions in India which जो माने प्रमोट करछन कोन इरिगेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल करै परन माने हम कहली द रीजन्स लाइक योर डेक्कन प्लेट्यू रीजन हेगला बा हिमालयन रीजन हेगला तो एटी इरिगेशन करबा एते सहज न इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. या व्यतीत जदि हम देखिबा इरिगेशन को जदि हम आर्टिफिशियल वे रे करा जाउछि बेसिकली आर्टिफिशियल वे माने टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इरिगेशन जोटा हम कैपिटल इंटेंसिव इरिगेशन लाइक पंप सेट करकी बा ट्यूबवेल करकी जेतबे इरिगेशन करा जाय. The concentration lies most in the states like Uttar Pradesh and Punjab. These states manakar adhika maliba as compared to the 4 states like Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand. Hela. The next, जदि हमें देखिबा अदर कंट्री मानक हिसाब रे चाइना ब्राजील को यूएसए को यूके को the technology they use in terms of irrigation is quite developed over the technology used by Indians. Technologies like sprinkle irrigation, drip irrigation facilities, these were quite developed in those developed countries. But in case of India, हमें कौन कौन देखी थी वो समस्त irrigation I think गाँव मान करे तो हमें पानी मोड़ांती केमती जमी रे बिल रे पानी मोड़ांती ये सब डायरेक्टली जो जाई थी हमर देखो कैनाल से कैनाल रो कनेक्शन नहीं जवा हमें तो कैनाल रो कनेक्शन ले प्रॉब्लम कौन हो डायरेक्टली तो पानी गुडा को वेस्ट अधिक हुए माने डायरेक्ट एफिशिएंट यूज बा ऑप्टिमम यूज पानी रो कम हुए गछ मूल को जति न जाय गछ आक पाक देकी बेस बट रादर ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन जति यूज करिवो से डायरेक्टली जोटी दरकार माने ठीक गछ तेरा पाखरे पानी देबो तो ओवर इरिगेशन नो भी नेगेटिव इंपैक्ट अछि जोटी गछ मूल रे पानी न दे बाहर देले दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द वीड्स तो वीड अधिक बढ़िया हमको अगेन वीड इंसेक्ट बढ़िबे पेस्ट बढ़िबे
So automatically we need to use weedicides, insecticides, pesticides, fertilizer. तो ये सब कंज्यूम करेंगे न्यूट्रिएंट भी माने कंज्यूम करबो अधिक काटू गछ को एक्जेक्टली गछ को जति न्यूट्रिएंट प्लांट को दरकार हम क्रॉप को जति दरकार न्यूट्रिएंट तो सॉइल रे फिक्स अछि तो कंपटीशन बढ़ जिवो प्लांट मान को भीतर कंपटीशन सेठी बढ़ियो जो क्रॉप को दरकार न्यूट्रिएंट ताको कम हे जिवो अदर क्रॉप्स एमान को अदर क्रॉप माने बेसिकली वीड माने को ऊपर कोची वीड माने अधिक न्यूट्रिएंट हे जिवो सो एक रे न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी दुई रे इट विल इंक्रीज इंसेक्ट्स पेस्ट एंड अदर weeds जहाँ पे हमें यूज करिया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पुन सेपटे फार्मर को लॉस फार्मर को सेपटे भी खेती चाहिए पड़िबा सो ओवर इरिगेशन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रहिछि आकु डेफिनेटली डिस्कस करिवो इरिगेशन सहित एग्जैक्ट इरिगेशन दरकार बा जति दरकार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन व्हिच रिक्वायर्ड नॉट द ओवर इरिगेशन या ऊपर भी डेफिनेटली डिस्कस करिवो सबले नेक्स्ट वाटर यूज एफिशिएंसी ऊपर हम डिस्कस कली efficiency India रे बहुत कम as compared to other countries. The next is the depletion in the groundwater. यदि indiscriminate withdrawal of the groundwater हुए by using electric pumps, so definitely ये power subsidy, power consumption भी अधिक करियो first. Second है groundwater भी deplete हो तारा layer level भी धीरे धीरे कम ही चले. ये सब होते हैं Indian case रे Indian scenario रे problem in the irrigation sector. What might be the suggested reforms or suggested measures for that? The first and the most important measure is to expand the area under irrigation, especially the जो सेक्टर रे हमारा वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं से सेक्टर को हमको डेवलप करिया पड़े मन सेटी इरिगेशन को प्रोवाइड करिया पड़े सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट रिसेंटली हैज लॉन्च्ड वन पॉलिसी वन स्कीम कॉल्ड हर खेत को पानी irrigation for all the fields. First point. Second, we should use such type of field variety crops which are low water intensive and there should be high value crops. Their production will be more, but the input parameter with respect to your water requirement that should be low. So crops like pulses, oilseeds, fruits and vegetables जो माने low water intensive हमको सही टाइप ऑफ प्रोडक्शन करवा दरकार. Next, वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिस को हमें डेवलप करवा दरकार कोन पई जेमति कि वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम माइक्रो वाटर स्ट्रक्चर प्रोग्राम आ गोटे अछि हमर कोन सेटा कोन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करि परिबा वाटर को रिसाइकल करि परिबा रीयूज करि परिबा हला कि माने डोमेस्टिक यूज परे से वाटर को हमें यूटिलाइज करि परिबा इजीली डोमेस्टिक यूज पर यूटिलाइज करि परिबा इरिगेशन फैसिलिटीज पई हला प्रत्येक घर जदि हम देखिबा ऑन डेली बेसिस ऑन एन एवरेज a person spends approximately more than 50 liters of water per day. More than 50 liters of water हमें खर्च करंती per person. तो जो फैमिली 4-5 टा लोक अछंती ताले केते वाटर कंजर्व हमें करि परिबा ताको यूज करि परिबा इरिगेशन में ताको रिसाइकल करि परिबा प्लस रीयूज करि परिबा. मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस एफिशिएंसी इन केस ऑफ वाटर यूज. तो जो ऊपर हम बर्तन डिस्कस कली एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज स्प्रिंकलर इरिगेशन फैसिलिटीज बा मु कहबी कि सेंसर बेस्ड इरिगेशन फैसिलिटीज ए सब जिंस जे हम यूज करछन ताले डेफिनेटली वाटर यूज रो एफिशिएंसी बढ़ियो. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग हमको करवा दरकार. इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग हम केमति कर परिबा ना पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट and basically we need a water users association. Water user association कोन ये गोटे कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन टाइप रो किछि लोक मिसी कि एटा को क्रिएट करिवे जो जगह रे नाही वाटर अवेलेबिलिटी हमें इन्वॉल्व करि परिबा विभिन्न टाइप रो लोकन को जो माने पार्टिसिपेट करिवे डेवलप करिया पई हमरो वाटर यूज को फर्स्ट सेकंड जेमि प्रत्येक जमी को पानी जाई पारे देखिबो बहुत गुडे जमी थाय भीतर जमी माने सेम गां रे सेम प्लॉट पाखा पे देखिबो सेठी कोन होय भीतर जमी गुडा को इंटीरियर जमी गुडा को पानी जाई पारे जो माने nearer lands to the canal they will be receiving more water whereas interior lands they will receive very less amount of water ताको हमें डेवलप करि परिया दरकार एटा केवल हमें सॉल्व करि परिया पार्टिसिपेशन द्वारा पीपल्स पार्टिसिपेशन द्वारा को करा दे परिया या सहित जो रीजन क्रोनिकली वाटर स्ट्रेस्ड रीजन सेमानक पय हमको स्पेशल सॉल्यूशन दरकार जेमति कि हमें वाटर ग्रिड क्रिएट करि परिबा रिवर वाटर ग्रिड क्रिएट करि परिबा बा वाटर शेड प्लस एक्टिविटी सब डेवलप करि परिबा रिसेंटली
a scheme has been launched called Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana and PMKSY. It is conversed with the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. ये सब जिन आम कर नेक्स्ट सहित जो योजना कहली मु कृषि सिंचाई योजना ये जगह आम कौन कर डिफरेंट मिनिस्ट्री इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एटी दरकार कौन पाई ना पूर्व इरिगेशन रिलेटेड स्कीम जब देखिए तो डिफरेंट एग्रीकल्चर बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट बा अलग मिनिस्ट्री किसी किसी समान इन्वॉल्व होते तो ये सब को हम मिसई की गोटे स्कीम करि परबा सो दैट एफिशिएंसी और एफिकेसी ऑफ द स्कीम इंक्रीज ही परियो इला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गवर्नेंस इश्यूज यदि फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम देखिबा ताले लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड एस्टैब्लिश करबा दरकार जो थ्रू ठीक उपाय रे हम टंका दे परिबा का फंड दे परिबा एमानको हमर फार्मर मानको दे परिबा पंप सेट पई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करिया पई ये सब डिस्कस माने ये सब डेवलपमेंट करा दे परिबा ठीक है ये थिला फोर्थ फैक्टर नेक्स्ट फैक्टर देखिए This monsoon, one of the program under Manrega, villagers recovered all the funds for rainwater storage in Gujarat. Villagers they recovered all the funds for rainwater storage. हाँ बहुत different type of activity वर्तमान promote होची बहुत activity promote होची recently जो दिखे सुनी थी वो कौन गोटे activity थिला को और मन पड़नी मत नाटा से कौन होता को जो वाटर लेवल जाइला वाटरमैन हाँ वाटरमैन ना शुणी इंडिया वाटरमैन से कौन कर रिचार्ज कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल फेलिसिटेशन भी मिललानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर जो जो जगह सब नई सुखी जाइथिबो रिवर बेड सुखी जाइथिबो से कौन कर रिचार्ज कर कौन टेक्नोलोजी यूज करके किसी दिन पर देखा जाउची कि सेठी वाटर अवेलेबिलिटी रहउची ये जिनस सब करा जाई परियो ए टाइप रो मेथोडोलॉजी को हमें अडॉप्ट करि परियो नेक्स्ट next is agricultural land policy agricultural land policy यदि वर्तमान टाइम पीरियड रे देखिबो ताले लैंड लीजिंग एंड टेनेंसी रिफॉर्म लॉ लैंड लीजिंग लॉज ये सब आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड रे जो ओनरशिप राइट्स थिला कोन पे ट्रांसफर करिया पे लैंड जण को नारो आउ जण को ये सब कौन डिस्करेज करा जाउतिला बा को जगह देखियो लैंड रिफॉर्म लॉ ठीक भाव आस कर नथिला बहुत अधिक प्लॉट जनक नारे पूर्व जमींदारी सिस्टम रही जाइतिला बट लैटर ऑन जेता परे आसला कि एक सब हमें कोन प्रोहिबिट कला गवर्नमेंट कि नहीं अधिक जमी रखि परिबन जने गोटे लिमिटेड क्वांटिटी रो जमी लिमिटेड क्वांटिटी रो जमी जने रखि परिबो ताठ अधिक रखि परिबन सो जो लैंड लीजिंग प्रोसेस अछि इंडिया रे या सहित बहुत गुडे प्रॉब्लम लागि रही कौन फर्स्ट लैंड लीजिंग ता सहित हमको दरकार कौन ना लैंड रेकर्ड रो डिजिटाइजेशन डिजिटल फॉर्मेट ऑफ द लैंड रेकॉर्ड्स एंड द सेकंड इज द कंक्लूसिव ओनरशिप राइट्स कंक्लूसिव ओनरशिप राइट्स ये जिनस हमको दरकार ये तीनटा फैक्टर जदि हमें माने मिसिकी चली पारे इन हैंड ताले डेफिनेटली एटी डेवलपमेंट हो पारिबो डेफिनेटली डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टीम दे पारिबो तो लैंड लीजिंग प्रोसेस को जदि हमें माने से टोटल एंटायर प्रोसेस को डिजिटलाइज न करूचे ताले प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप रो एटी लागि रहउ जेमति कि तो देखतो कि सेम प्लॉट वो कटक भुवनेश्वर रे बेसी पाउथिबो याको सेम प्लॉट 5 जन को बिक्री कर देथिबो समान काहे कि यदि यार ऑनलाइन सिस्टम हम पाके थांदा में लैंड रो प्लॉट नंबर मार देला परे तार डिटेल्स देखि दियंता ओनर डिटेल्स ताले ये इश्यूज आसंतानी प्रॉब्लम होंतानी माने या पई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस प्रॉब्लम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम
प्लस जो माने ऑफिसर अछन समान को इश्यूज प्लस बेसिकली जे कंज्यूमर जे परचेस करछि से लैंड को ता पई भी प्रॉब्लम सो डिजिटाइजेशन and updation of the land ownership record that is a must in today's time period तो याकू न कले कन्क्लूसिव ओनरशिप राइट आसीबो कन्क्लूसिव ओनरशिप राइट माने कोन जनक पाखु आसीबो माने सेम जमी से मते बिकिथिबो तुमको बिकिथिबो आउ काकू बिकिथिबो पांच जन को बिकिथिबो तो से माने प्रॉफिट कोन होय तांकर ना जो लास्ट लोक को बिकिथिबो कि कोनस लोक तो जानियो कि मोटू से जमी माने फर्जरी करी कि नै से टंका मागिबो तो ताकू 10 लाख टंका देथिबो तो मो टंका मते रिटर्न कर से कोन करिवो 2-4 मास पर 5 लाख फेरै देबो रेस्ट 5 लाख दवा पई खेलिबो धीरे 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 करके दफनी एमती प्रोब्लेम शुणी एगुड़ा सब बाकी फेस भी करते पारा तेणु लैंड किणला बेले परचेज कला बेले प्रोसेस पूरा भल भाव बुझी शुणी करवा दरकार तो डिजिटाइजेशन बर्तमान हो द्वारा ये सब प्रोब्लेम धीरे धीरे कम हो जाउछि ये ला गोटे अनदर इनपुट पैरामीटर द नेक्स्ट इनपुट पैरामीटर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज टेक्नोलॉजी सो को टाइप रो टेक्नोलॉजी हमको दरकार ऑलरेडी डिस्कस करछि कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये चारिटा टेक्नोलॉजी गोटे टाइप रो टेक्नोलॉजी को सब फोकस करबन बारंबार हम कहि जेंती सब एंगल देखिबो कोन टेक्नोलॉजी हे पारे 360 डिग्री एनालिसिस करियो प्रत्येक टॉपिक सो दैट ताको इंटरलिंक करि परियो डिफरेंट माने पॉइंट सहित बा डिफरेंट इश्यूज सहित सो दैट हमर माने क्लैरिटी आसीबो अधिक तो ये चारिटा टाइप रो टेक्नोलॉजी को हमें यूटिलाइज करि परिबा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर फर्स्ट हमें देखिबा हमें बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड देखिबा जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखिबा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रो मु गोटे कॉटन यील्ड रो एग्जांपल देखौछि कॉटन यील्ड केते हितला इंडिया रे आप माने बिफोर यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स and after using genetically modified crops so that तुम बुझी परियो कि actually genetically modified crops रो utilization केते अछि in today's time period 1950 रे टाइम रे जदि देखियो ताले cotton yield थिला कि 85 kg per hectare 85 kg per hectare थिला 1950 रे 2002 रे हमको मिलला 185 2014 हमको मिलला 530 kg पर हेक्टर रो हिसाब देखो तो एटी देखो बेसिकली किछि स्टेट मु कहिबी स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश गुजरात 2001 नो 2010 भितरे बीटी कॉटन नो इंसेक्टिसाइड यूज जदि देखिबा ताले एई स्टेट मानकर 50% रिडक्शन हिची इंसेक्टिसाइड माने यूज करना कोन पई फर्टिलाइजर्स रो यूज रे कमी माने यूज करना फर्टिलाइजर बिकॉज़ जो जीन अच्छी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज कला पर सन को फर्टिलाइजर्स रा आवश्यकता होनी फर्टिलाइजर हमें कोन पई करन बेसिकली न्यूट्रिएंट फैसिलिटी प्रोवाइड करिया पई करंदी आ देखु जो कोन एनपीके फर्टिलाइजर्स बेसी यूज हुए एनपीके फर्टिलाइजर तो एनपीके फर्टिलाइजर जदी हमें ऑलरेडी जेते बेले गोटे प्लांट डेवलप होउची तार सीड रे जदी हमें से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर देले माने बायोटेक्नोलॉजी यूज कर से प्लांट रो जीन को स्ट्रेंथन कर देले डेवलप कर देले देन ऑटोमेटिकली इट विल बी फ्लड रेजिस्टेंट it will be drought resistant it will be insect pest resistant by जो nutrient मिलिया कथा the required nutrients they will be available for the plant ये सब available है जो GM crops पाखरे हला ये ला फर्स्ट इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी जोटा हम GM क्रॉप हिसाब रे यूज करि परबा नेक्स्ट आउ किछि टाइप रो टेक्नोलॉजी अछि जहा को कोनती हमरा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन स्कीम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एसआरआई स्कीम एसआरआई टेक्नोलॉजी को जाय को सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एथरे कोन होय ये बेसिकली गोटे स्किल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हला ये इनपुट कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो जहां इनपुट हमें पूर्व देखुतले ये इनपुट को लो करियो बा इनपुट लेवल को मिनिमाइज कर दो जेमति इरिगेशन फैसिलिटीज को फर्टिलाइजर को बा अदर इनपुट जहां हम डिस्कस करते ये यार काम वाला कि इनपुट कम दो बिकॉज़ इनपुट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सेंस सो लेस फैक्टर ऑफ लेस क्वांटिटी लेस अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रे जदी हम कम खर्च हो ऑटोमेटिकली तार प्राइस भी कमी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़िले प्राइस भी बढ़ियो मार्केट रे सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ये बेसिकली कम करूछ नेक्स्ट गोटे टाइप रो टेक्नोलॉजी यूज है कि फार्मिंग अछि जहा को प्रिसिजन फार्मिंग ना सुनछो यार प्रिसिजन फार्मिंग रे कोन होय ये गोटे ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम
ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम याकू यूज कौन पाई करा जाए ना तुमर से सीडिंग को प्लांटिंग को बा ट्रांसप्लांटेशन को फॉर द राइस वेजिटेबल सीडलिंग को मल्टी क्रॉप थ्रेशर को हार्वेस्टर को ई सब जगह याकू यूज करा जाए तो याकू यूज कला हमर बेनिफिट कोन है ना आउटपुट हम पाखरे बढ़ जाए आर एफिशिएंसी अधिक हुए कम परिश्रम रे कम खर्च रे लेबर इंटेंसिव एते हुएनी हमको कम परिश्रम रे अधिक जिंस हम प्रोडक्शन करि परिया नेक्स्ट कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप रे कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी हम यूज करम जेमति हम कहली टिलेज बा टिलेज कंजर्वेशन जदि देखिबो पाखा पाखी स्टेट जदि मुने भी ताले मध्य प्रदेश होची बेस्ट एग्जांपल या पई मध्य प्रदेश कौन पे कहला हमर सोयाबीन प्रोडक्शन होची मध्य प्रदेश रे भलो होई जानिबो सोयाबीन प्रोडक्शन ने ये विभिन्न टाइप रो कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी यूज करके सोयाबीन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करे छी इंडिया रे 25 टू 30% पाखा पाखी हो सोयाबीन नो प्राइस रिडक्शन इची ओनली फॉर अडॉप्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जहां हम रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी कहंती जेमति कि इरिगेशन फैसिलिटीज को कमेबो रेसिड्यू को ठीक भाबरे मैनेज करिवो रेसिड्यू मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज रेसिड्यू मैनेजमेंट वर्तमान देखु तो केमति आसुची प्रॉब्लम सब न्यूज पेपर बार बार इश्यूज आसुची रिलेटेड टू योर स्टबल बर्निंग सुनिଛ ना ये इश्यू वर्तमान स्टबल बर्निंग बेसिकली ये को जगह देखियो को मिलुची एतरे कोन स्टबल बर्निंग रेफर्स टू योर burning of the plant residues burning of plant residues and basically rice और wheat धान और गहम काटला पर देखियो जो प्लांट रेसिड्यू ता बळे ये ताको जाळी दियंत जाळी गले यार नेगेटिव पॉइंट बहुत अछि जाळीले फर्स्ट एनवायरनमेंट ऊपर नेगेटिव पॉइंट स्पेशली अपन द एटमॉस्फेयर रे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये बढ़ेला सेकंड सॉइल हेल्थ ऊपर इंपैक्ट पकेबो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माने अछंती माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माने गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एमानकर सब डेथ हो मरि जिवे नेक्स्ट जदि देखिबो एयर क्वालिटी कंडीशन इन केस ऑफ दिल्ली ये वर्स्ट ही चलची दिनो दिन ओनली बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग स्पेशली इन द नियर जोन्स ऑफ पंजाब पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये तीनटा जाका ही अधिक हुए स्टबल बर्निंग एटू से धुआं गुडा का सीफूड कष्टी दिल्ली को आसुछ तो एथरे अछंती कोन पार्टिकुलेट मैटर्स पीएम पार्टिकुलेट मैटर्स ये इंक्रीज करोची तुमरा वर्सन करोची डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करोची लाइक ब्रोंकाइटिस को लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन को एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 it creates more vulnerability towards lungs infection जो माने कर lungs infection अछि they are more vulnerable again towards to be the victim of covid-19 तो ए कारण पे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज आसुची गवर्नमेंट एटी डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ फॉर्मुलेशन करछि को बंद करिया पय स्टबल बर्निंग को बंद करिया पय ओटा छि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट सेकंड इंडियन पेनल कोड अनुसार भी आर डिफरेंट प्रोविजन अछि ऑफेंस टुवर्ड्स द नेचर तो ये प्रोविजन पके की लॉ को स्ट्रिंजेंट करी की बंद करिया पय चेष्टा करा जाउछि नेक्स्ट पॉइंट जदि हम देखिबा ताले एठी हम टेक्नोलॉजी यूज करि परिबा बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट रे कोन होबो ना ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवो कोमन अथॉरिटी मानु को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवो रिलेटेड व्हाट अथॉरिटी मानु को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवो रिलेटेड को रीजन ने स्टबल बर्निंग होची सो दैट से मान को बंद करि पारे थर्ड ये सैटेलाइट द्वारा जानिबो कि डिटेक्ट करिवो रिकॉग्निशन कले तो का पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवो सो रिकॉग्निशन एंड इंफॉर्मेशन ये दीटा काम सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी को लेके हम कर परिया ये सब बहुत यार सॉल्यूशन स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट इशू इन टू दिस टाइम पीरियड एनवायरमेंटल इशू तो यार रिलेटेड क्वेश्चन आसी पारे यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इनपुट जदि देखिबा हमें ताले रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर बेसिकली we need interference of the private sector public sector already exists the large network in case of India that is ICAR Indian Council of Agricultural Resource यार बेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ପାଇଁ ଅଛି आ पाखरे NARS नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम ये इंडिया रा एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम को डोमिनेट करके रखिछ तो हमको दरकार कोन ना प्राइवेट सेक्टर को इटी इंटरफेयर करवा दरकार एतरे किछि प्रॉब्लम अछि प्राइवेट सेक्टर को जदि हम इंटरफेयर करूचंती एग्रीकल्चर रे यार प्रोज अछि प्लस इन द सेम वे यार कॉन्स भी अछि कोन प्रोज एंड कॉन्स प्राइवेट सेक्टर को इंटरफेयर करेले फर्स्ट बेनिफिट हैला से माने कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल यूज करि पारिबे
माने इन्वेस्टमेंट यूज करेंगे कौन असुविधा ना। सेकंड इज टेक्नोलॉजी, किसी इशू नहीं से टेक्नोलॉजी की यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। बट कॉन्स कौन यार इश्यूज कौन, प्राइवेट सेक्टर को जब अधिक प्रमोट करदे एम कौन कर आईपीआर ना शुण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं सब सीड्स ऊपर माने मंजी गुड़ाक तो मंजी पर प्राइवेट सेक्टर बेसिक मोटो ऑब्जेक्टिव सब कौन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये सीड्स ऊपर माने आईपीआर नहीं जिवे ये सीड्स गुड़ा को मार्केटाइजेशन मार्केट प्राइस ये मंजी रे सब बढ़ी सो दैट जोटा को फार्मर अगेन अफोर्ड करि परिबो नाही एंड कम इनपुट लेवल बढ़िले ऑटोमेटिकली फार्मर ऊपर बर्डन पकेबो, प्रोडक्शन तो बढ़ोनी। सो ए कारण पई प्राइवेट सेक्टर को अधिक एनकरेज करा जाउ नाही माने हमर एग्रीकल्चर सेक्टर हला। ताले डी करि कोन परिबो सॉल्यूशन आर कोन ना पीपीपी मॉडल ले काम होई परिबो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे जोटी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर both will coexist, both public and private sector they will coexist, ये भले हेले डेवलपमेंट हे परिबो। येला किछि टाइप रो इनपुट पैरामीटर ऊपर हम डिस्कस करले, आ किछि मेकानाइजेशन ऊपर डिस्कस करछि, किछि मैकेनिकल इनपुट ऊपर। गोटे मिशन गवर्नमेंट रो आसीतला जार नाम होछि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन यार ऑब्जेक्टिव हमें देखिबा ये फार्म मेकानाइजेशन को डेवलप करियो। फार्म मेकानाइजेशन माने कोन माने मीनिंग होछि मशीन यूज करियो फार्म प्रोडक्शन इनपुट पैरामीटर को आउटपुट को गछ लगाइबा हार्वेस्टिंग करबा टू आरंभ करी माने मंजी पकेबा फर्टिलाइजर पकेबा जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड गुडा को स्प्रे करिबा वीडिसाइड को माने वीड गुडा को सफा करिबा बा हार्वेस्ट करिबा टिलेज करिबा गछ काटी कि नेला परे ताको प्रोडक्शन करिबा ये सब काम मशीन द्वारा इनस्टॉल करा जाय दैट इज कॉल्ड मेकानाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर हला। से कोची कि मेकानाइजेशन को डेवलप करा याको एक्सेसिबल करा लोकन पाखरे। नेक्स्ट कोची कि कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर को डेवलप करा यार काम कोन रहइबो promoting custom hiring centers to offset the adverse economies of scale arising due to small land holding। ये लैंड होल्डिंग प्रॉब्लम हुए बहुत। लैंड होल्डिंग कोन जदी गोटे चासी रो जमी गुडा को गोटे जगह रे इंटीग्रेटेड हिकी नथिबो विभिन्न जगह रे ये बिछड़ी की पड़थिबो गोटे गोटे जगह रे छोट छोट ताले डेफिनेटली ये प्रोसेस रे ताको लेंथी प्रोसेस करेबो ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करिवारे हळ कला बेल को से गोटे जगह रे वर्तमान करियो पुनी आ गोटे दूर को जीवो जदी पाखा पे देखिबो जमी गुडा को ताको इंटीग्रेशन ऑफ द लैंड पुंजी इंटीग्रेटेड लैंड जे कहला ताको ताले इनपुट पैरामीटर करिया पे माने यूज करिया पे सहज हो केला गोटे कथा। नेक्स्ट ये कुछ हाई टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू रो फार्म इक्विपमेंट को यूज करबा दरकार कोन पे ये इंपोर्टेंट हाई टेक्नोलॉजी हाई वैल्यू रो फार्म इक्विपमेंट ये बुझी परथु एथरे क्वालिटी बढ़िया पे प्रोडक्शन अमाउंट बढ़िया पे awareness creation among the different stakeholders through demonstration and capacity building activities। demonstration माने चासी जेतबे यूज करिवो ये टेक्नोलॉजी गुडा को चासी को जणा नथिवो केमती यूज करिया पड़िवो। सो अवेयरनेस कैंपेन हवा दरकार सेमान को बुझेवा दरकार जेमती पूर्वरु देखतिबो सब डिफरेंट टाइप रो टीवी रे हमर दउतला बहुत गुडे होइन संध्या चलतला कल्याणी पॉलिसरी ई सब टाइप रो जो डीडी नेशनल आस्तला देखतिबो के छोट बड़े तो ये भले यदि प्रोग्राम हुए ताले लोक चासी मान को स्पेशली यूजफुल हो कि माने केमती यूज करिवे। या व्यतीत सेकंड यदि हम जो माने पढुचंदी इंजीनियर माने अछंती सेमान को यदि एटी काम लगे परिबा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऊपर जो माने पढुचंदी बा बायोमेडिकल रिसर्च करथन ताकू यदि एटी काम लगे परिबा कि से माने फील्ड वर्क करके फार्मर मान को बुझेबे बा या व्यतीत वर्तमान डिफरेंट टाइप रो एनजीओ सब अछि। रिलायंस रो देखिबा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करिया पई रिलायंस रो एनजीओ अछि, टाटा रो एनजीओ अछि, मन तो बहुत बड़ बड़ छोट छोट एनजीओ भी अछि जो मन को टी इन्वॉल्व करा जाय परिबो। मन कर काम कोन रहबो ना क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग यूज ऑफ द मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट to ensure performance testing and certification at designated testing center located all over the country। performance testing और certification कहार दिया जावा दरकार ये इनपुट पैरामीटर बेसिकली सीड्स को फर्टिलाइजर को बा सॉइल को यार परफॉर्मेंस टेस्टिंग हवा दरकार। प्रॉब्लम कौन हो इन टुडेस टाइम पीरियड इन फाइंडिंग व्हाटएवर मे बी द प्रोडक्ट और द क्रॉप
people farmers they generally they will use the NPK fertilizer and urea. These two fertilizers are very common to all the crops irrespective of the nutrient requirement or irrespective of the nutrient available in the soil. So when definitely किसी भी गच्छ लगान तो first वे यूरिया किन के आनिबे NPK किन के आनिबे पके देबे. So इथ पे हमको गवर्नमेंट स्कीम आनिला आपे कोन ना soil health card scheme. Soil health card रे complete details of the soil ki what are the factors or in which factor the soil is rich, को nutrient rich achandi को nutrient poor achandi or what is requirement of the soil including pH value of the soil. ये सब जिनस जे हम कंप्लीटली डिटेल्स मेंशन करि परिबा जो कार्ड रे मेंशन है ताको एटी कहला हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. सॉइल हेल्थ कार्ड रे हम सॉइल रो सॉइल को डायग्नोसिस कला पर हम जानि परिबा कि एक्जेक्टली को फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कोन कोन दरकार ही पारे सो दैट हमें अननेसेसरी यूज जो पूर्व होतला फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड ताको रोकी परिबा. सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सॉइल रो भी दरकार प्लस द सीड्स रो इनपुट पैरामीटर बेसिकली सीड और फर्टिलाइजर जानती सीड रो भी दरकार जेमति कि सीड एचआईवी अछि ना नाही हाई यील्ड वैरायटी रो सीड अछि ना नाही ये सब को भी जानिया दरकार. नेक्स्ट ये सब जहां जहां हम डिस्कस करले ये सब मिशन थिला बा ऑब्जेक्टिव थिला याकू अचीव करिया पई ये डिफरेंट टाइप रो स्ट्रेटजी एक्सेप्ट करितला. कोन कोन स्ट्रेटजी करितला ना ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग फॉर वेरियस फार्म मशीनरीज इक्विपमेंट करिया पई चारिटा जगह रे इंडिया रो चारिटा जगह रे फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट क्रिएट कला हैला का को जगह रे क्रिएट कला एकटा जगह रे करथिला कोन हेडा मने कोन गोटे कुर्ती हां एटी अछि टेस्टिंग चारटा जगह रे कला गोटेला बुधनी मध्य प्रदेश हिसार हरियाणा आंध्र प्रदेश रे गोटे कला गोटे आसाम रे कला. ये चारटा जगह रो नाम मन रखियो तुमरो ओपीएससी प्रीलिम्स रे बेले बेले गोटे गोटे इंस्टीट्यूट को जगह रे अछि से रिलेटेड क्वेश्चन पचार दोछ. एग्रीकल्चरल मेकानाइजेशन करिया पई फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इंडिया रे चारिटा अछि ए जगह. नेक्स्ट it started promoting farm mechanization among the stakeholders by the way of on-field and off-field training. On-field and off-field कौन field रे training provide करा जीवो farmer मानो को किए provide करिवो जेमते हम डिस्कस करले सिविल सोसाइटी करू एनजीओ करू स्टूडेंट करंतु गवर्नमेंट रो किछि विन करू जो माने करंतु बट on-field से माने देखैबे farmer को एई वे रे यूटिलाइज करा एक मशीन मानो को प्लस off-field माने को डेमोन्स्ट्रेशन सिमुलेशन टाइप रो प्रोजेक्ट जेमती मैं एथिरे हमर प्रोजेक्टर रे चलेबो मूवी चलला बळे समान को बुझेबो कि वेयर एमटी यूटिलाइज करियो दरकार. ये सब ब्लॉक लेवल ले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लेवल ले ये सब जिंस को हम डेवलप करि परिबा. नेक्स्ट फार्म रा मशीनरी गुडा को बेसिकली कॉस्टली हितांती ई कारण को ताको किनिया पई फार्मर मानन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जिवा दरकार. फाइनेंशियल असिस्टेंस नदल से माने किनबे किन देते बड़ जिंस ये ला इंपोर्टेंट. नेक्स्ट ला क्रॉप स्पेसिफिक फार्म मशीनरी एंड इंप्लीमेंट. क्रॉप अनुसार स्पेसिफिक क्रॉप अनुसार हमें फार्म मशीनरी की यूटिलाइज करि परिबा प्लस ताको इंप्लीमेंट करि परिबा बा ताको बिक्री करि परिबा. प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर हायरिंग मशीनरी एंड इंप्लीमेंटिंग लो मैकेनाइज्ड रीजन्स जो रीजन ने यूज करा जाउन याकू मशीन मान को से रीजन ने डेवलप करिया पई फार्मर मान को हमें प्रमोट करि परिबा से मान को टंका दी परिबा किनिया पई फाइनेंस प्रोवाइड करि परिबा माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करि परिबा व्हिच इंक्लूड्स माइक्रो क्रेडिट प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लस एसोता हम ताको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ सिखि परिबा टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करि परिबा ई सब जिंस रा आवश्यकता रही छै. ई गोटे किता स्लाइड रे लिखि छी याको पढिबो फार्म रे मशीन ना इंपोर्टेंस कोन कोन पई दरकार एमडी दी तीनटा स्लाइड मोड इंट्रोडक्शन टाइप रो देछि किछि बुझवा रेटी कष्ट होबनी ई दीटा स्लाइड निजे पढियो देखियो कोन लिखा है साथ. नेक्स्ट फार्म मशीनरी फार्म रे मशीन केमती यूज करा जाय माने मोच गोटे फ्लो चार्ट थ्रू रे बुझै छी कि केमती टेस्टिंग करा जाय यार एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जहां हुए माने हमर मशीन जहां प्रोड्यूस हुए मशीन रो टेस्टिंग केमती करा जाय सेटा देखियो वर्तमान माने ने जे मैन्युफैक्चरर एटी के सबले गोटे प्राइवेट सेक्टर ही मैन्युफैक्चरर से कोन करबो ना ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड करिवो टेस्टिंग करिया पई तार मशीन माने न टाटा आजि कोन कला टाटा गोटे नुवा हार्वेस्टर तयारी कला नुवा हार्वेस्टर गोटे मैन्युफैक्चर कला तो हार्वेस्टर मनुक मार्केट रे बिक्री करि परिबो तो मार्केट रे बिक्री करिया आगरो याको गवर्नमेंट तो परमिशन आने पड़ियो गवर्नमेंट को टेस्ट करियो ई कारण पई त हम पढितले
जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मन पका स्टार्टिंग रे पढ़िथिले इन द इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेगुलेटर काम हम काहू देथिले रेगुलेटर फंक्शन हम सब स्टेट को देथिले सो स्टेट ही रेगुलेट करिवो ये जगह स्टेट भी रेगुलेट करिवो प्रोडक्शन करिवो प्राइवेट गुड्स हिसाब रे टाटा बट रेगुलेट करवा को स्टेट कहीं मानी ताको यूज कला पर ये अधिक डीजेल खाऊची बा अधिक पेट्रोल खाऊची बा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करूची सॉइल नष्ट कर दोची ये सब रेगुलेट गवर्नमेंट करिवो तापर ताको मार्केट को छड़ा दे पारिवो तो ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड हबो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हला परे फॉरवर्ड हला परे ई कोन करिवो ई प्रोसेस ता देछि एक्जेक्टली से केमती गवर्नमेंट रहउची बट हमर जानिया दरकार एप्लीकेशन फॉरवर्ड हे गेला गवर्नमेंट पाकर एप्लीकेशन पहुंच गेला गवर्नमेंट कोन करिवो ना टेस्ट करिवो का टेस्टिंग करिवो टेस्टिंग जो इक्विपमेंट बा जो मशीन आसी दिवो से मशीन को टेस्टिंग करा जिवो टेस्टिंग कला परे ताको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जिवो ताको सर्टिफिकेशन ऑफ द मशीन कहला सर्टिफिकेट प्रोवाइड कला परे ही से जो प्राइवेट कंपनी थिवो से ताको मार्केट को छाडी परिवो जहा फीस तार थिवो पेमेंट कला परे examine the it is the receive करची ये FTR by examine comments on the DTR and it will prepare the final test report की प्रोवाइड करिवो गवर्नमेंट रे जो एजेंसी अछि ये फाइनल टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करिवो फाइनली फाइनल टेस्ट रिपोर्ट को एग्जामिन करा जिवो तापर से अप्रूव हला पर रिलीज हबो रिलीज हला पर ही ये मार्केट को आसी परिवो इटला तार प्रोसेस जानि था किंदी हुए हमर बेसी से जानिया न ये टेक्नोलॉजी बुझेला केमती हां प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी बुझेला ये टेक्नोलॉजी केमती यूटिलाइज होची नेक्स्ट टॉपिक जीवी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक बहुत क्वेश्चन आसुची एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही तीनटा टॉपिक मु कहबी इंपोर्टेंट तुमरो एतरे इकोनॉमिक्स रे गोटेला एग्रीकल्चर गोटेला इंडस्ट्री आ गोटे हला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यारी अंडर रे इकोनॉमिक्स सब आसी जो जा जा पाठ अछि हम ए तीनटा टॉपिक अंडर एमथरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अंडर रे सब ही आसी जो टोटल इकोनॉमी आसी जो एसडीआई अंडर यही इंपोर्टेंट तापर जीएम क्रॉप्स मते डिस्क्राइब करिवार अछि बहुत दिन चलो जानी एग्रीकल्चर डाकी दो आपको पर्सन डाकथिली लास्ट टाइम कोन डाकिथिले यूथ डेवलपमेंट लिख दीजो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो ठीक है लेखा एग्रीकल्चर लागी दो बहुत गुडे पढ़े दिले India is an agrarian economy. India is an agrarian economy. The share of agriculture in GVA gross value added is approximately 17%, 17%. And share in employment is approximately 50%.
ଆଉ କିଛି ଡାଟା ତଳକୁ ଲେଖା ଟୋଟାଲ ଏରିଆ अंडर कल्टीवेशन 43%, forest area 23%, forest area 23%, pasture 4%, cultivable waste 4%, fallow land 9.6%. Next, irrigation status. किसी पास डाटा को irrigation status. Canal irrigation, public canal irrigation 30%. Wells and tube wells, private irrigation 60%. Tank irrigation 5%. Next, horticulture sector. Horticulture. Total contribution to agriculture GDP. Total contribution to agriculture GDP is 33%. Fruits and vegetables accounts for 90% of total horticulture production. Fruits and vegetables 90% of total horticulture production. India is second largest producer of fruits and vegetables in the world. Second largest producer. First in the production of banana, lemon, mango, papaya, and okra. Okra कौन? Okra कौन? भेंडी भेंडी. Largest producer and exporter of spices. Largest producer and exporter of spices. Next, livestock. सब ऊपर स्पेशली पढ़िया फास्ट की डाटा रखी दिखाने livestock accounts for 30% is contribution to agriculture GDP. India has largest livestock population in world. Largest livestock population in world.
57% of buffaloes and 13% of cattle. India is fast in milk production. Fast in milk production. Total world production 18.5%. 18.5% of world production. Next. Significance of agriculture. Significance. Social significance. The point कौची मैं लिख परियो चाहिए को टोटल लाइन. Social significance. Poverty, health, nutrition, migration. Increasing nutrition. Next point in reduces migration, reduces poverty. बुझिपार्छ तो मु शॉर्टकट रे डाकी दउछ हिसाब निजे टिके एडजस्ट करिवो. नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. Technological significance. It creates demand for point कर लिखो. First point mechanical technology, instruments like tractor, power tiller, cultivator, etc. Next chemical technologies like fertilizer, insecticide, pesticide. Next biotechnologies like HIV, high yield variety seed, GM crops. Next information and communication technology, ICT. Like eNAM. Next international significance. India has transformed from begging bowl country to a food surplus and an agro exporting country. Which is a strategic advancement for India.
Next, political significance. Protest for loan waiver, vote bank politics, and regional issues. Next, economic significance. Economic significance रे कौन कहते? Employment generation. And provides employment to approximately 50% population. Source of raw material to it is a source of raw material to other industries. Next, environmental significance. Soil contamination, degradation, groundwater depletion, environmental pollution, atmospheric pollution, water scarcity, water stress, eutrophication. Next, state of Indian agriculture sector. State of Indian agriculture sector. देखो एटा लिखियो ध्यान देके छाड़ीबनी किछु पैराग्राफ है हाई इनपुट कॉस्ट comma unproductive land holding declining yield or declining production non-remunerative price over dependency upon monsoon ineffective government policies climate change are the different factors that induces agrarian crisis which leads to low farmers income
full stop. It creates an economic situation with incompetency or inability to repay the debt, to repay the debt, inability to repay the debt, followed by farmer's suicide. So, full stop. So there is a demand of loan waiver by farmers association, by farmers association, activist, and opposition. More loan waiver creates more wide fiscal deficit of the states, which later on decreases lower investment. And hence, lower investment is the cause of agrarian crisis. And again, lower investment is the cause of agrarian crisis. याको यूज करिवो ये पैराग्राफ को जीएस आंसर राइटिंग रे प्लस एसे रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड आंसर जेतो लिखो डेफिनेटली यूज करिवो एग्रीकल्चर रिलेटेड एसे 100% तुम्हारा ई थर को नेक्स्ट माने अपकमिंग ईयर मानक पई जीएस एसे रे आसु बात मोर इंग्लिश जो अछि कंपलसरी पेपर इंग्लिश से एसे रे आसु एग्रीकल्चर रिलेटेड एसे हो तो जीएस पेपर हो तुम्हारा ऑप्शनल हो कोनोस ना कोनोस जगह डेफिनेटली यूज हो तनो ए जो पैराग्राफ डाकिले आपको ठीक भाव रिप्रेजेंट करिवो इतरे बहुत इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अछि इंक्लूडिंग द लास्ट फैक्ट फिगर जहाँ पे ता सहित next the heading issues and reforms required in agriculture sector. आपको ये वाला गोटे टैग कर दियो सो दैट सब दिन सहित रह जाए रिफॉर्म प्री और ड्यूरिंग प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन एठी कोन करि करियो इनपुट
इनपुट रहला हमर फर्स्ट दर लिखिबा हमें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रे जो चारटा कहतली लिखिबो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी केमिकल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है इरिगेशन पोस्ट प्रोडक्शन में स्टोरेज मार्केट सप्लाई चेन प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन सब रही गला ना कौन छाड़ दिले आउते सब रही गला जहाँ छाड़थिबा लिखिया पर देखियो ए सब फैक्टर हमरो जानिया दरकार एग्रीकल्चर रिफॉर्म माने एही सेक्टर रे रिफॉर्म हवा दरकार फर्स्ट डबल एक डिस्कस करिया हम सीड इटा मास्टर स्लाइड इटा रखिथिबो एको पर चेंजेस करिया जदी इथरे किछि माने जोड़िले हम नुवा जदी किछि छाडी जाइथिबो ताले लास्ट को कोन जोड़िया इथरे सब प्रकार रिफॉर्म रहि गला ड्यूरिंग और प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन कोन हवा दरकार तापर लेखो सीड्स रे कोन डेवलप हुआ दरकार it affects 20 to 25% crop productivity. Challenges. First, low quality seed. जल्दी लिखियो low quality seeds. Improper testing and certification. Ill-equipped laboratories. Less private investment. Inadequate investment in biotechnology. Less infrastructure facilities. Next. Way forward. First point, private sector participation. Because they can invest more. And they have developed technologies over the government in comparison to the government. Investment wala technology wala private. Next, third party quality certification is required. Next, establishment of seed village bank.
Seed Village Bank. It serves to the farmer community during natural calamities like flood, drought, cyclone, pest epidemic. Next, quality storage. Next, quality storage infrastructure with respect to climate. Next, collaboration between Indian scientists, policymakers, public and private sector seed producers to make India a seed hub in the global map. Next, fertilizers. ମାନେ ଏଟା A କରିକି ଲେଖିଥିବ ଯୋଉଟା ଆମେ डिस्कस କଲେ seeds. First factor discuss ହେଲା ଆମର seeds. Second input factor input discuss କରୁଛନ୍ତି. Fertilizers. Indian soil is deficient in many nutrients. Problems. First point, indiscriminate use of fertilizer. Indiscriminate uses of fertilizer, especially NPK and urea. Due to lack of knowledge among farmers, due to faulty government subsidy policy, etc. Second point, excessive use of fertilizers. It leads to soil and ground contamination, low productivity, eutrophication, which is a threat to the biodiversity. Eutrophication. Which is a threat to biodiversity. Next. Reforms. This will a problem. Reform measure the way forward. First point, 5 kind of government interference or government intervention in urea sector. 5 kind of government intervention in urea sector. First,
controlling MRP. Second, more subsidy to inefficient farms. More subsidy to inefficient farms. Third, subsidy to importers. Fourth, movement control. Means how much to import and where to sell. Movement control. यार माने होची how much to import केते करिबा कोठी सेल करिबा. Where how much to import and where to sell. Limited agencies allowed to import. Fifth, next point. Promoting soil testing labs. Soil testing labs. Next, promoting परंपरागत कृषि विकास योजना. परंपरागत कृषि विकास योजना माने ट्रेडिशनल गुड. परंपरागत कृषि विकास योजना. Promoting use of organic fertilizer. Next, establishment of Fertilizer Development and Regulatory Authority. Fertilizer Regulatory Authority. DBT on of fertilizer subsidy. Direct benefit transfer of fertilizers. Regula 6-17 point. Answer na कम होती थी कोई. कितना point ला solution. ठीक अच्छे 8टा बहुत. पेस्टिसाइड ये सब आगो देखिबा. अच्छा काली जदी मॉर्निंग रे क्लास करिवा किछि प्रॉब्लम अछि काहको. जदी मॉर्निंग रे करिवा किछि प्रॉब्लम अछि काहको. जार नाही किछि कोन जार अछि खाली मत जणा जदी कार को प्रॉब्लम अछि. टाइम केतेटा बेले भी मु कंफर्टेबल जा को प्रॉब्लम अछि तमे टाइम दियो. खाली प्रॉब्लम अछि जा से माने को प्रॉब्लम अछि जा. अच्छा यू हैव प्रॉब्लम. वन्या यू हैव प्रॉब्लम. ओके हो ठीक अछि ताले जदी प्रॉब्लम अछि विदिन 9 चलेबो. आफ्टर 9 ओ ता ठीक अछि क्लास करछि टाइमिंग मैच होनी. ठीक अछि काली 7:30 आज यूजुअल हम क्लास ताऊ जदी न होछि. इन केस मु न नै परिबि जदी क्लास ताले काली रो क्लास पर दिन को पोस्टपोन हे जो. जदी मु न नेली मु जणाइबी न नेले हैला. जदी न नेली ताले पर दिन को एडजस्ट कर पोस्टपोन हे जो. थर्सडे सैटरडे कर दो. फ्राइडे को दिन. हो ठीक अछि आज एते थाउ. नेक्स्ट क्लास रे आउ देखिबा. ऑप्शनल स्टार्ट करबा 2-4 दिन भीतर ऑप्शनल स्टार्ट करबा हैला. आउ वेट करबेनी.
लेट हेलानी जति कि से अलगा सिलेबस जो मानकर सरिछि